Beyond continental break, you have a steep slope that is called as continental slope. So you have steep slope, okay. Here there would be not much deposits, almost no deposits. And where do you find the deposits? You'll find the deposit at continental rise. Either you'll have continental rise or you'll have trench, or you'll have the trench. ठीक है, या तो कॉन्टिनेंटल राइज रहेगा या तो ट्रेंच प्रेजेंट रहेगा। अब कॉन्टिनेंटल स्लोप पे एक फीचर रहता है, यूनिक फीचर दैट यू कॉल्ड एज सबमरीन कैनियन। कैन यू सी गैप्स हियर? कैन यू सी गैप्स हियर? कैन यू सी गैप्स हियर? सो व्हाट आर दीज? बेसिकली कैनियन क्या होता है? कैनियन, इफ इट इज अ कैनियन इज अ टर्म, अ जेनेरिक टर्म दैट मीन्स, let's say this is the mountain. Mountains में you will see canyon. This is the entire mountain. There is a river that is flowing. There is a river that is flowing from the mountain. There is a river that is flowing from the mountain. The river tends to erode. The river tends to erode. The river can be involved in lateral erosion, side में erode करेगी और deep भी erode करेगी. It will also erode the mountains deep. This is the entire mountain. So it is eroding in the side, and it is also eroding vertically. साइड में तो इरोड कर ही रही है और वर्टिकल भी इरोड करे, तो क्या हो जाता है, आपकी एक वैली बन जाती है जिसको आप कहते हैं वी शेप्ड वैली. दिस वी शेप्ड वैली इज एक्चुअली कॉल्ड एज कैनियन. व्हाट इज अ कैनियन? अ वैली, अ वी शेप्ड वैली. बट हम क्या कह रहे हैं अभी कि स्लोप पे, ऑन द स्लोप you have a surface, you have a feature called as submarine. सबमरीन यानी पानी के अंदर, कैनियन यानी इधर वी शेप्ड वैली है, इसके बीच में यहाँ वी शेप्ड वैली है. तो पूरा स्लोप ऐसे, स्लोप कंटिन्यूस नहीं है, स्लोप के अंदर ऐसे वी शेप्ड वैली है, स्लोप के अंदर ऐसे वी शेप्ड वैली है, स्लोप के अंदर ऐसे वी शेप्ड वैली है. इसको आप क्या कह रहे हो? सबमरीन कैनियन. लिखे सबमरीन कैनियन के लिए. On the continental slope, on the continental slope, there are deep valleys. There are deep valleys. There are deep valleys. You can see this. There are deep valleys. On the continental slope, there are deep valleys called as submarine canyon. Submarine canyon. ठीक है, लिखिए. They are formed by the sediments that fall down from the continental slope. जो sediments गिर रहे हैं continental, from the continental slope नहीं, from the continental shelf लिखें, from the continental shelf, on the slope. तो जो सेडिमेंट्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ से गिर रहे हैं, स्लोप के तरफ, ये सेडिमेंट्स सबमरीन कैनियन बनाते हैं. ठीक है, दीज सेडिमेंट्स दे मेक अप सेडिमेंट्री कैनियन. कैसे? ये जो स्लोप है, सॉरी शेल्फ है, ये स्लोप है, शेल्फ से जो सेडिमेंट्स गिर रहे हैं, राइट, दे आर ट्राइंग टू स्क्रैच, they are trying to scoop out, scratch and scoop out the slope, and what do you get? You get cuts, valleys called as submarine canyons. So वही लिखा है, they are formed from the sediments that
fall from the shelf on the slope. लिखे these sediments scoop जैसे आइसक्रीम का स्कूप निकालते हैं, they scoop out. If you've seen an ice cream tub, you scoop out an ice cream, ऐसे निकालते हो ना तो एक गड्ढा सा हो जाता है, तो वैसे ये sediments भी, these sediments scoop out the continental slope, scoop out the continental slope, creating submarine canyons. ठीक है, ब्रैकेट पे लिखें the sediments fall down at a high speed. The sediments fall down at high speed. And are called as turbidity current. Turbidity, Turbidity. Turbidity currents, CURRENTS, turbidity currents. They are called as turbidity currents. वही लिखा है, deep valleys हैं ocean water में, they cut across the continental shelf and slope. Valleys shelf में भी मिलती है, slope पे ज़्यादा मिलती है. हडसन कैनियन नाम है, हमारे यहाँ पे भी आप देखोगे इंडस कैनियन, गंगा कैनियन, गोदावरी कैनियन. ठीक है, तो इंडियन ओशन में भी जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है, ये इंडिया है. This is let's say India. Here you have the Bay of Bengal and here you have the Arabian Sea. So here you will have shelf, you will have slope. On the slope also you have canyons. Yes. They are named after the rivers. गंगा के पास गंगा कैनियन. ठीक है, टुवर्ड्स गोदावरी यू हैव गोदावरी कैनियन, जहाँ पे इंदस जाके मिलती है अरेबियन सी में, यू हैव द इंदस कैनियन. सो सिमिलरली हडसन इज ऑल्सो अ रिवर, तो हडसन कैनियन भी बोलते हैं अटलांटिक ओशन में. दीज आर सम एग्जाम्पल्स. ठीक है, सो दिस इज योर सबमरीन कैनियन. सो शेल्फ डन, continental shelf, continental break, continental slope, continental rise, and you have also seen submarine canyon. Right, the next one, deep ocean basin. Deep ocean basin, also called as abyssal plain. Also called as abyssal plain. ABYSSAL, abyssal plain. नीचे लिखें डैश करके, दे आर द फ्लैट रीजन has lot of deposits of clay and silt. It has some islands and it has some islands. कुछ islands दिखेंगे, फ्लैट सरफेस है, दिख रहा है फ्लैट है, इस पे डिपॉजिट्स होते हैं सैंड का, सिल्ट का, क्ले का, फाइन डिपॉजिट्स होते हैं. ठीक है, उस पे कुछ आइलैंड्स हो सकते हैं, हमको दिख रहे हैं. इट हैज़ सम आइलैंड्स एंड ऑल्सो ओशनिक रिजेस. ठीक है, लिखें फिर मिड ओशनिक रिज के बारे में. नेक्स्ट वन, मिड ओशनिक रिज के बारे में. First point, it is a mountain system seen on the ocean floor. Next point, it is formed by divergent plate boundary. It is formed by divergent plate boundary. ठीक है, it is a long linear chain. Of the mountains. It is a long linear chain of the mountains.
ठीक है. नेक्स्ट लिखिए, इट इज नॉट वेरी टॉल. इट इज नॉट वेरी टॉल. ठीक है. द हाइट ऑफ द पीक्स, द हाइट ऑफ द पीक्स can be around 2.5 to 3 किलोमीटर. 2.5 to 3 किलोमीटर. ठीक है. तो यहाँ पे दिख रहा है आपको डॉल्फिन रिज, चैलेंजर रिज, यू कैन सी थॉमस वाई विले रिज. ये सारी की सारी क्या है, मिड अटलांटिक रिज है. दैट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंस बिटवीन द African plate and the South American plate as well as the Eurasian plate and the North American plate. ये डाइवर्ज हो रही है और आपको क्या मिल रही है, डाइवर्जेंट बाउंड्री पे आपको मिड ओशनिक रिज मिल रही है. ठीक है. तो इसके बाद फीचर लिखे, ट्रेंच. They are steep sided. Narrow gap on the ocean floor. They can be 3 to 5 kilometer deep. Than the surrounding oceans. They can be 3 to 5 kilometer deep than the surrounding ocean floor. ये ocean floor अगर let's say 4 किलोमीटर की डेप्थ है on an average, तो ये और 3 से 5 किलोमीटर डीप हो सकती है than the surrounding ocean floor. देखिए, ocean deep इसी में ocean deep is the deepest point of the trench. तो ट्रेंच का सबसे डीपेस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं, ओशन डीप. एग्जाम्पल चैलेंजर डीप which is the deepest point of Mariana Trench is which is the deepest point of Mariana Trench is how many kilometer deep? 11,000 मीटर. 11 किलोमीटर. 11 kilometer is 11 kilometer deep. ठीक है. तो फ्लोर से 11 किलोमीटर, मतलब हिमालय जितना विशाल नहीं है. हिमालय क्या है, 8.8 और ये उससे भी डीप है, 11 किलोमीटर डीप. ठीक है. इसलिए अगर आप देखोगे कि अर्थ की एलिवेशन, मतलब डिफरेंस बिटवीन द डीपेस्ट पॉइंट एंड द हाईएस्ट पॉइंट, the deepest point and the highest point, the elevation is, the difference is about 20 kilometer. 11 and around 8.89, so it's around 20 kilometer. इतना अर्थ की क्रस्ट में वेरिएशन दिखता है. ठीक है. The trench is formed because of what plate interaction? ट्रेंच कब बनता है, कौन सा प्लेट इंटरेक्शन होता है? OC convergence and OO convergence. Trench is formed because of OO convergence and OC convergence. ठीक है. The trench is associated with
active volcanism and earthquakes. ठीक है, एक्टिव वॉल्केनिज्म है और क्या है, earthquake. So this was about your trench. तो ओशन डीप हो गया, ट्रेंच हो गया. Let's start. Continental shelf done, continental break done, continental slope done, continental rise done, trench and ocean deep done, abyssal plain done, mid oceanic ridges done, submarine canyon also done. Yes, write the heading. तो क्या क्या हो गया हमारा, देख लो. शेल्फ डन, स्लोप डन, राइज डन, ट्रेंच डन, ओशन बेसिन जिसको आप डीप सी प्लेन बोलते हो या एबिसल बेसिन बोलते हो या डीप ओशन फ्लोर बोलते हो, वो भी हो गया. ओशन डीप एंड ट्रेंच हो गया. लाइक राइट द हेडिंग आइलैंड्स. उसमें लिखें आइलैंड्स में फर्स्ट वाला सी माउंट. गिव द हेडिंग सी माउंट. Sea mount. What is sea mount? It is an underwater island with a pointed top. ठीक है. Sea mount does not reach the surface of the ocean. A sea mount does not reach the surface of the ocean. Does not reach The surface of the ocean. Ocean के स्तर पे नहीं पहुंच रहा है, ऊपर तक नहीं आ रहा है, अंदर ही है, छोटा है हाइट में. ठीक है. Example Emperor Sea Mount. An example is Emperor Sea Mount. ठीक है. तो आइलैंड में एक टाइप का आइलैंड क्या है, सी माउंट. दूसरा टाइप का आइलैंड लिखो गियोस. GUYOTZ. गियोस. तो अभी हमने क्या देखा, यू हैव सीन सी माउंट. दिस इज अ सी माउंट. It is not reaching the surface. It is with a island with a pointed summit and it has not reached the ocean surface. अंदर ही है. ठीक है. अब हम गियोस देख रहे हैं. गियोस क्या होता है, इसका ना फ्लैट टॉप होता है. गियोस it is also called as टेबल माउंट. सी माउंट की जगह पे टेबल माउंट, क्योंकि टेबल की तरह दिख रहा है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेबल माउंट बिकॉज इट हैज अ फ्लैट टॉप. It is assumed an island it is assumed that an island is there some voice issue? Can you, what is the problem? Is the voice cracking? Your voice has been subdued by the other surrounding voices. It's very slow. क्या हो रहा है? बाहर की आवाज आ रही है. ये वाला दे दे, इसको लगाऊं. Is it fine now? Nitin, Paul, Sandeep? Yes, ma'am. Fine. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको मार्क लगा दो. नील पॉलिश. ठीक है. अब ठीक है ना सब? ऑल गुड. ठीक. चलो ठीक है. सो वेयर आर वी आर गियोस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेबल टॉप माउंट. ठीक है. इट इज
क्या लिखा है? It is also called, it has a flat, हाँ, it has a flat top. It is assumed an island which got eroded, and later on, I'll repeat, it is assumed that an island which got eroded, erosion हो गया उसका, which got eroded and later on witnessed submergence and later on witnessed submergence is called as geos. ठीक है, तो इसका टेबल टॉप क्यों है? ये ऐसे टेबल क्यों बन रहा है? टेबल टॉप इसलिए बना है क्योंकि पहले ये ऊपर तक था, उसके बाद क्या हो गया, उसका इरोजन हो गया। जब इरोजन हो गया तब इसका टेबल जैसा स्ट्रक्चर बना है। कोई चीज़ ऐसे इरोड होती है और उसके बाद वो सबमर्ज हो गई, जब पानी के अंदर सबमर्ज हो, इसलिए ये टेबल टॉप। तो अ फ्लैट टॉप इज इंडिकेटिंग इरोजन. This got eroded and then later it got submerged under the water and therefore it is called as geos. Geos होता क्या है? टेबल माउंट. क्या होता है? एक बड़ा आइलैंड था, ऊपर तक था, इरोजन हो गया तो उसकी जो चोटी थी वो फ्लैट होती गई और वो नीचे सबमर्ज हो गया टू बिकम geos. क्लियर? सो दिस इज अबाउट योर geos. और कुछ तो नहीं बचा है? हो गया सारा? ठीक. सो वेयर आर वी आर लुकिंग एट ओशन. सी ओशनोग्राफी कैसे जाएगा? हमने जैसे क्लाइमेट को समझा था वैसे एक बार ओशनोग्राफी को भी समझते हैं. ओशनोग्राफी, सबसे पहले वी हैव ओशन बॉटम रिलीफ. एक बार ओशन बॉटम रिलीफ हो गया, फिर आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हो ओशन की. द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओशन. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओशन? इफ़ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटमॉस्फेयर. दो प्रॉपर्टी थी. क्लाइमेट यानी क्या? टेम्परेचर और प्रेशर कैसा है, टेम्परेचर और मॉइस्चर कैसा है, ये देखते थे. टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर. तो प्रॉपर्टीज ऑफ ओशन क्या होगी? टेम्परेचर एंड सैलिनिटी. ये दो प्रॉपर्टी है ओशन की. इसके साथ लिंक्ड हो जाती है आपकी डेंसिटी. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ओशन. इसके बाद तो आपका ओशन, पहले ओशन बॉटम देख लिया, फिर ओशन वाटर पढ़ा. ओशन वाटर के बाद उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी. फिर आपका होता है ओशन मूवमेंट्स. ओशन में कौन से मूवमेंट्स हैं और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट क्या है? ओशन करंट्स. ओशन करंट. ठीक है. सो राइट अबाउट द सेकेंड वन, ओशन टेम्परेचर. ओशन टेम्परेचर. कितना टेम्परेचर होता है ओशन का? कितना? 26. साइक्लोन ही बनती रहेगी पूरे ओशंस में. 7, 22. वाह, जो मन में आ रहा है बोल रहे हो. ओशन वाटर का ऑन एन एवरेज टेम्परेचर क्या होता है पूरे ओशंस का? टोटल मिला के, ट्रॉपिक का मिलाओ, इक्वेटर का मिलाओ, 0 किलोमीटर पे मिलाओ, 5 किलोमीटर पे मिलाओ, 4 किलोमीटर पे मिलाओ. सेम कैसे हो सकता है? मिक्सिंग है ना, एवरेज निकाल रहे हैं ना, एवरेज निकालेंगे ना. एवरेज पूछ रही हूँ ना मैं. एवरेज ओशन टेम्परेचर क्या होता है? 19. बाप रे. हाँ, 15, 25, वाह, 10. लेस देन 35. लेस देन 25, मोर देन 20. एवरेज ओशन. यार फिशेस बचेंगे क्या 25 पे? आपने पढ़ा होगा ना, स्टेनोहलाइन, यूरीहलाइन, यूरीथर्मल, स्टेनोथर्मल. फिशेस, कोरल रीफ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लैंक्टन्स. इतना ह्यूज बायोडाइवर्सिटी है. देख लो, गूगल कर लो. 16. कहाँ पढ़ रहे हो? गूगल में. कौन सा गूगल में? On an average, the ocean temperature is about 3.5 to 4 डिग्री सेल्सियस. पूरे ओशंस की बात चल रही है. ट्रॉपिक्स के पे इट कैन रेंज अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस, बट इन द पोलर रीजन इट इज कोल्ड, इट इज 0.
ठीक है. सो एवरेज इज अबाउट 3.5 to 4 डिग्री सेल्सियस. लिखे द एवरेज ओशन टेम्परेचर इज अबाउट द ओशन टेम्परेचर हेडिंग थी. ओशन टेम्परेचर हेडिंग थी. On an average, the ocean temperature is around 3.5 डिग्री सेल्सियस. ये न्यूज़पेपर में भी है, इकोनॉमिक टाइम्स में. 3.5 डिग्री सेल्सियस इतना एवरेज का ओशन का. 35 लग रहा है, 3.5 लिखो. हाँ, 3.5 डिग्री सेल्सियस. ओके, बट अब ओशन वाटर है. ओशन वाटर कैसे होगा? सो सपोज लेट्स से दिस इज अफ्रीका, यूरोप. अभी सिर्फ अटलांटिक ही देख रहे हैं. ये मैंने बोला एवरेज इज 3.5, अटलांटिक का भी 3.5, बट दिस विल वैरी बेस्ड ऑन दी लैटिट्यूड. दिस विल वैरी बेस्ड ऑन दी latitude. This will vary based on the latitude. The polar region, the average temperature is about 0 degree Celsius. At the equator it can be let's say about 20 degree Celsius. ठीक है. और ट्रॉपिक्स पे लिखते हैं, it can be around 22 degree Celsius ट्रॉपिक्स पे. इक्वेटर पे अराउंड 18 डिग्री सेल्सियस. ये तो सरफेस की बात कर रही हूँ. सरफेस पे पोल पे 0 डिग्री सेल्सियस है. सरफेस पे इक्वेटर पे 20 डिग्री सेल्सियस है. सरफेस पे ट्रॉपिक पे 22 डिग्री सेल्सियस. बट नीचे जब जाते हो सरफेस वाला क्या होता है, तो एक तो लैटिट्यूड यानी ऐसे हॉरिजॉन्टली चेंज हो गया, बट ओशन वाटर डेप्थ के हिसाब से भी चेंज करेगा. सो एट द सरफेस इट्स लेट्स से 20 डिग्री सेल्सियस. एट द सरफेस लेट्स से इट इज 0 डिग्री सेल्सियस. बट नीचे जो पानी होता है 500 मीटर के नीचे, 1 किलोमीटर के नीचे पूरा ओशन यूनिफॉर्म होता है. पूरा टेम्परेचर यूनिफॉर्म होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि सनलाइट उसको हीट कर सकती है ओनली अप टू 500 मीटर. सनलाइट ने इतना ही हीट किया है, तो 20, 25, 18, 12 ये सिर्फ 500 मीटर का रेंज है. और उसके नीचे 1 किलोमीटर के नीचे डार्क जोन है वेयर देयर इज नो सनलाइट पेनिट्रेट. द एंटायर ओशन, टाइटैनिक देखा है ना, डार्क जोन. द एंटायर ओशन हैज़ अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. सबका 4 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट उतना ही रहता है. 4, 3.8, 3.5, 4.2 ऐसा. और ये पता भी होगा ना, वाटर सब देखो, कोई भी लिक्विड को जब आप हीट करोगे तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? कोई भी लिक्विड को आप हीट करो वो एक्सपैंड होगा, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी. कोई भी लिक्विड को जब आप कूल करते जाओगे तो वो कंट्रैक्ट होगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी किस पे होती है? देखो, वाटर को आपने हीट किया 4 डिग्री सेल्सियस से 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो वो एक्सपैंड होता जा रहा है. पर अगर वाटर को आप कूल करते हो 4 डिग्री सेल्सियस से, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, तो वाटर की डेंसिटी क्या बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. पर ऐसा होता नहीं है. वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी इज एट 4 डिग्री सेल्सियस. दिस इज कॉल्ड एज एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. वाटर्स मैक्सिमम डेंसिटी इज नॉट एट 0 और 0.1, इट इज एट 4 डिग्री सेल्सियस. तो 4 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम डेंसिटी होती है ना, तो नीचे तो डेंस वाटर होगा. तो ये भी प्रूव होता है कि हाँ, नीचे ओवरऑल 4 डिग्री सेल्सियस ही है. वर यू सेइंग समथिंग नितिन? ओके 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 ओके, ठीक है. सो वाटर्स मैक्सिमम डेंसिटी इज एट 4 डिग्री सेल्सियस. 4 डिग्री सेल्सियस से हीट करोगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी. 4 डिग्री सेल्सियस से कूल भी करोगे तो भी डेंसिटी कम हो जाएगी. एनॉमलस बिहेवियर ऑफ द वाटर. केमिस्ट्री इतना है, ठीक है. ओशन टेम्परेचर लिख लिया. द एवरेज ओशन टेम्परेचर इज अबाउट 3.5 डिग्री सेल्सियस. लिखिए. However, the temperature of the ocean water, the temperature of the ocean water varies, 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 differs, varies by location, dash करके, both in terms of latitude as well as depth.
This is due to variation in the solar radiation. This is due to variation in the solar radiation. ठीक है. This is due to variation in the solar radiation. कुछ लैटिट्यूड में ज़्यादा सोलर रेडिएशन है तो वाटर ज़्यादा हीटेड है, पोलर रीजन में कम सोलर रेडिएशन है तो कम हीटेड है. शुरू के 500 मीटर तक डेप्थ पे ऊपर का डेप्थ की बात करें, ज़्यादा सोलर रेडिएशन है तो ज़्यादा हीटेड अप. 500 मीटर से 3 किलोमीटर तक, 4 किलोमीटर तक कम रेडिएशन है तो कम हीटेड अप. सो द टेम्परेचर विल वैरी बोथ इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड as well as depth. Why? Because there is variation in the solar radiation. समझ आया? So this was about your average ocean temperature. Now give the heading factors affecting. Give the heading factors affecting temperature of the oceans. Factor affecting the temperature of the oceans. क्या है factors जो ocean के temperature को affect करेगा? बताओ. Factors बताने. हाँ तो उसमें फैक्टर बताओ पैटर्न में. वेरी गुड. द फर्स्ट फैक्टर इज, लिखने के पहले आप मुझे बता दोगे फिर लिखना. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द ओशन टेम्परेचर? वन ऑफ यू सेड इज लैटिट्यूड. सेकंड हाँ ओशन करंट. वार्म ओशन करंट है तो क्या हो जाएगा? वार्म हो जाएगा वो रीजन. कोल्ड ओशन करंट है तो क्या हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा. और हाँ बट उससे वो मिक्स हो जाता है एक्चुअली पानी. तो एरिया अगर आप बोल रहे हो तो आप जो विजुलाइज कर रहे हो ये कह रहे हो कि आप ये बोलना चाहते हो कितना पानी लैंड से सराउंडेड है, यही बोलना चाह रहे हो ना. सो एनक्लोज्ड नेचर एनक्लोज्ड नेचर ऑफ द सी, द एनक्लोज्ड नेचर ऑफ सी. ठीक है. ज़्यादा लैंड से सराउंडेड है तो ज़्यादा गर्म होगा समर्स में और ज़्यादा ठंडा होगा विंटर्स में. ठीक है. ज़्यादा ठंडा होगा विंटर्स में. तो एनक्लोज देखो इट्स लाइक दिस. सपोज हियर यू हैव अफ्रीका हियर एंड दिस इज योर लेट्स से अटलांटिक ओशन. आप मुझे बोल रहे हो लैटिट्यूड के हिसाब से इफेक्ट करेगा, लैटिट्यूड के हिसाब से वाटर इफेक्ट करेगा. दिस इज लेट्स से ट्रॉपिक्स, सो दिस इज 25 डिग्री सेल्सियस अज्यूमिंग. दिस इज लेट्स से टेम्परेचर, दिस इज 15 डिग्री सेल्सियस. ये आपने बोला लैटिट्यूड. फिर आपने मुझे बोला कि ओशन करंट्स, सपोज यहाँ पे कोल्ड ओशन करंट है तो ये पानी ठंडा हो गया, बट कंपैरेटिवली इसी लैटिट्यूड पे वार्म ओशन करंट है तो ये पानी गर्म हो गया. सो लेट्स से दिस इज 27 एंड लेट्स से दिस इज 22. ठीक है. तो एक आपने मुझे बोला लैटिट्यूड, एक आपने मुझे बोला ओशन करंट्स. अब तीसरा फैक्टर मुझे क्या बोल रहे हैं? तीसरा फैक्टर बोल रहे हैं एनक्लोज्ड नेचर ऑफ द सी. ये वाला जो पानी है मेडिटेरेनियन का, ठीक है, इस लैटिट्यूड पे सबका 25 डिग्री सेल्सियस है. इस लैटिट्यूड पे सबका 25 डिग्री सेल्सियस है. अटलांटिक ओशन का 25 डिग्री सेल्सियस है. बट मेडिटेरेनियन सी का टेम्परेचर 25 से ज़्यादा होगा कि 25 से कम होगा? 25 से ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि लैंड है. लैंड क्या होगा? लैंड ज़्यादा गर्म है. ज़्यादा गर्म है तो इसको ज़्यादा हीट है. तो एनक्लोज्ड नेचर ऑफ द सी ऑल्सो इफेक्ट. इसी का कॉन्ट्रास्ट करते हैं. ये है आपका अटलांटिक ओशन. लेट्स से यहाँ पे टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस. ये है बाल्टिक सी. इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा कि कम होगा? इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा. क्यों? क्योंकि हाई लैटिट्यूड पे तो लैंड क्या होती है? ठंडी होती है. तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 9 डिग्री सेल्सियस या 7 डिग्री सेल्सियस. समझ आया? तो एनक्लोज्ड नेचर ऑफ द सी, that also plays an important role. So what is playing an important role? Latitude. What is playing an important role? Ocean currents. The third, enclosed nature of sea. या फिर land water difference की भी बात करते हैं. Northern hemisphere. Northern hemisphere का जो पानी है, ये इक्वेटर है, this is the equator. Northern hemisphere का पानी will be more warmer.
than the southern ocean. It will be more cooler. Why? Because यहाँ पे पूरा ocean है. Specific heat की बात कर लेते हैं. ठीक है, पानी को टाइम लगेगा गर्म होने में, बट वो वाला पानी जल्दी गर्म हो जाएगा. So land water difference, enclosed nature of the sea, latitude, and you have the ocean currents. और एक और factor है. Salinity is influenced by temperature. Temperature is not influenced by salinity. ठीक है. फ्रेश वाटर ठीक है, बोल सकते हो. विंड्स सही पढ़ रहे हो, पर विंड्स करता क्या ये बताओ. ऑफशोर विंड्स क्या करेगा? वेरी गुड. ऑफशोर विंड्स रहेगी, अपवेलिंग रहेगी. तो इफ यू हैव अपवेलिंग, कंटिन्यूस अपवेलिंग, you will have colder water and there will be warmer water at the different sides. जो कल MCQ किया था, upwelling. ठीक है, तो प्लीज लिखिए factors affecting the temperature of the ocean. लिखिए फर्स्ट लाइन. Ocean water gets heated up by solar energy. Ocean water gets heated up by solar energy. Therefore, the factors affecting ocean temperature are. Therefore, the factors affecting the ocean temperature are. One, first wala are first latitude. Temperature of the dash करके temperature of the surface water. Temperature of the surface water decreases from tropics towards poles. Tropics towards pole. As the amount of insolation. Reduces towards poles. As the amount of insolation reduces towards poles. ठीक है, the first one was latitude. Second, first था latitude. Second लिखें, unequal distribution of land and water. Unequal distribution of land and water. Unequal distribution of land and water. The land in the northern hemisphere. The land in the northern hemisphere receives more heat. Due to their contact with larger proportion of land than in the oceans in southern hemisphere. ठीक है, so लैटिट्यूड देख लिया, लैंड वाटर डिफरेंस देख लिया. राइट द थर्ड वन, प्रिवेलिंग विंड्स. डैश करके ऑफशोर विंड्स. ड्राइव warm surface water away from the coast. Full stop and right. This leads to upwelling of the cold water
फ्रॉम बिलो, फ्रॉम बिलो, ठीक है. इसमें लिखें कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी या इन कॉन्ट्रास्ट, इन कॉन्ट्रास्ट ऑन शोर विंड्स, ऑन शोर विंड्स pile up water near the coast, pile up warm water, pile up warm water near the coast, pile up warm water near the coast. Onshore winds pile up the warm water near the coast and therefore raises the temperature, and therefore it raises the temperature. ठीक है. So prevailing winds, latitude हो गया. You've seen the prevailing winds, you've seen the land water difference. Right, the fourth point, ocean currents, ocean currents. Warm ocean currents, warm ocean currents increases the ocean temperature, increases the ocean temperature. Example, Gulf Stream, Gulf Stream, Gulf Stream, GULF, Gulf Stream, ठीक है. Increases the temperature of, increases the temperature of eastern coast of North America, eastern coast of North America. ठीक है, फुल स्टॉप एंड राइट. इसी में नेक्स्ट पॉइंट, कोल्ड ओशन करंट्स, कोल्ड ओशन करंट reduces the temperature, reduces the temperature of the oceans, of the oceans. Example, Canary's current, Canary, CANARY, Canary's current reduces the temperature, reduces the temperature along west coast of Africa, along the west coast of Africa. ठीक है. Land water difference, prevailing winds, ocean currents and the latitude. Right, the fifth point, west coast of Africa, no? Canary is along the west coast of Africa. It reduces the temperature along the west coast of Africa. Fourth point हो गया. Fifth लिखे, conditions in the enclosed sea, condition in the enclosed sea. लिखें, enclosed sea in the low latitude, enclosed sea in the low latitude have high temperature, have high temperature than the open sea, than the open sea. Example, Mediterranean Sea, example, Mediterranean Sea versus open Atlantic Ocean, versus open Atlantic Ocean. इसी में लिखिए, इसी पॉइंट में नेक्स्ट, मेडिटेरेनियन सी वर्सेस ओपन अटलांटिक ओशन, ओपन अटलांटिक ओशन. समझ आ रहा है ये पॉइंट, एनक्लोज सी. ठीक है, उसके बाद लिखें इसी में एनक्लोज सी में, द एनक्लोज्ड सी इन द हाई लैटिट्यूड्स, द एनक्लोज्ड सी इन द हाई लैटिट्यूड have lower temperature, have lower temperature than the open oceans, than the open ocean. Example, Baltic Sea versus open Atlantic Ocean, open Atlantic Ocean.
ठीक है. So we've understood what are the factors that affects the ocean temperature. Give the heading. Distribution of the temperature. Distribution of the temperature. हम क्या देख रहे हैं? हम ओशन प्रॉपर्टीज देख रहे हैं. ओशन प्रॉपर्टीज में मैंने देखा क्या फैक्टर्स हैं जो ओशन के टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं. एंड अब मैं क्या देख रही हूँ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग देख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं. डिस्ट्रीब्यूशन को भी दो तरीके से देखेंगे. एक देखेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक देखेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन. वर्टिकल यानी ओशन में डीप में जाते जा रहे हो. ओशन 0 किलोमीटर पे खड़े हो, 500 मीटर पे गए, 1 किलोमीटर पे गए, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर. और कहाँ पे खड़े हो वो भी मैटर करता है. इक्वेटर पे खड़े और डुबकी लगा रहे हो, कि ट्रॉपिक पे खड़े और डुबकी लगा रहे हो, कि टेम्परेट मिड लैटिट्यूड में खड़े और डुबकी लगा रहे हो, कि पोलर रीजन में खड़े और डुबकी लगा रहे हो. इससे भी मैटर करेगा कि कैसे आप डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ द ओशन को विटनेस करते हैं. तो फैक्टर्स देख लिया. अब डिस्ट्रीब्यूशन देख रही हूँ. डिस्ट्रीब्यूशन यानी कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है. तो सरफेस में ज़्यादा है, कहाँ पे? पोल इक्वेटर पे खड़े हो, सरफेस पे ज़्यादा है कि डीप पे ज़्यादा है. पोल्स में खड़े हो, सरफेस ऑफ द ओशन वाटर पे ज़्यादा है कि डीप पे ज़्यादा है. इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर. तो इसमें आपने हेडिंग दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर, उसमें ए हेडिंग दे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर. पहले देख लो फिर बनाना.